देखो अब विजिबल है, ओके। तो इसमें बेसिकली वी आर कमिंग टू हेयर दिस टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। तो टाइम रेस्पॉन्स में हाउ वी विल कैलकुलेट द टाइम रेस्पॉन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज the transfer function used to be in terms of Laplace transform of output to the Laplace transform of input, provided the initial conditions are zero. So उस केस में क्या होता है कि that is CS by RS इक्वल टू द ट्रांसफर फंक्शन, और क्लोज लूप के केस में GS अपॉन 1 प्लस GSHS होता है। और जो मैंने आपको ऊपर बताया है वो जो इसका है डीसी सर्वो मोटर, एसी सर्वो मोटर का डीसी का बताया मैंने अभी तक। तो डीसी सर्वो मोटर में हमेशा ये रहेगा कि दैट इज KM अपॉन S टाइम्स ऑफ टाउ MS प्लस 1। वो है आपका आर्मेचर कंट्रोल में। डीसी सर्वो मोटर के लिए रहेगा आपका KM अपॉन S अपॉन टाउ MS प्लस 1 इंटू टाउ FS प्लस 1 फील्ड वाइंडिंग के लिए। तो वहाँ जो इनपुट है, इनपुट दिस में भी ये स्टेप सिग्नल, दिस में भी ये also. So first we will come to the step signal here. This step signal is defined as this should be any amount AT at a t greater than equal to 0, and that will be 0 by if t is less than 0. So here ut is equal to 1, RT is equal to AUT. This is step signal. Unit step signal, this UT will be equal to 1. अगर A equal to 1 हुआ तो वो unit step signal हो जाएगा. So ut is equal to 1 t greater than equal to 0, that is 0 t less than 0. So what will be this RS? RS t, and this t is for t greater than 0, and that is 0 for t less than 0. तो इसका जो होगा RS will be A upon S square हो जाएगा। और these are the signals. The first one है that is step signal, second one is the ramp signal, third one is parabolic signal, and fourth one is the impulse signal basically. So what you can see, this parabolic signal देखिए, RT is equal to AT square by 2। AT square by 2 इसलिए लिया है कि जब हम इसका RS लेंगे ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वो डिवाइड बाय 2 आता है, 2 डिवाइड बाय 3, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं इसके लिए। So AT square by 2 for t greater than 0, and that will be 0 for t less than 0. So this RS will be here equal to A upon S square हो जाएगा ये, ठीक है। So ये हो गया आपका पैराबोलिक सिग्नल। Now come to this signal, that is the impulse signal. Impulse signal is defined as that it should have infinite height at t equal to 0, and the width should be ideally 0. So this is not possible. That's why we have to keep some height as well as some width there, so that the total integral under this impulse, that is minus epsilon to plus epsilon delta t dt, that should be equal to 1. And this epsilon is tending towards 0. Limit of epsilon is tending towards 0 here. So this is the impulse signal. So only it is defined at 0, and this delta t will be 0 when t is not equal to 0. You can see. So this delta t will be u dot t or dut by dt, or delta Laplace of delta t, that will always be 1, that is RS. ओके तो अब इसका हम एक आपको ये दे देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर जो सिस्टम है आपका यहाँ पर है, दैट इज 1 अपॉन टी एस प्लस 1, जो आपका है जी एस इज 1 अपॉन टी एस, एंड व्हेन यू विल टेक द यूनिट स्टेप, दिस इज यूनिटी फीडबैक इन क्लोज लूप केस, सो सी एस बाई आर एस विल बिकम 1 अपॉन टी एस प्लस 1। तो वहां पर क्या था, 1 अपॉन टी एस प्लस 1 था एंड इंटू एस था। सो जब आप सी एस बाई आर एस लेंगे तो इसमें एक एस और आ जाएगा, दैट विल बी ऑफ आर एस। अगर आप यूनिट स्टेप फंक्शन लेते हैं, यूनिट स्टेप इनपुट, तो सी एस विल बी इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाई टी एस प्लस 1, एंड आर एस विल बी फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, दैट विल बी 1 बाई एस, जो अभी हम आगे देखेंगे इसको नेक्स्ट उसमें। देखिए यहाँ पर सी एस क्या है, आर एस इक्वल टू 1 बाई एस, सी एस विल बी 1 अपॉन एस इंटू टी एस प्लस 1. So whenever you will calculate the time response of this system, you have to go for partial fraction of this, and this partial fraction will be here, that is a by s
plus b upon ts plus 1. So after that you have to calculate the value of a and b. So value of a is coming out to be 1 and value of b will be minus t. So this total cs is going to be 1 upon s minus t upon ts plus 1. So now how you have to go for Laplace inverse. तो Laplace inverse के लिए जो सेकेंड टर्म है टी एस अपॉन टी एस प्लस वन, तो यहाँ से आपको एस वन अपॉन एस प्लस एक ही टर्म में लेके आना है इसको. तो टी को कॉमन ले लीजिए. सो दिस विल बी टी से टी ऊपर कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी वन अपॉन एस प्लस वन बाई टी. सो वन बाई एस का तो वन हो गया लाप्लास इनवर्स माइनस और वन अपॉन एस प्लस वन बाई टी का हो गया ए टू द पावर माइनस टी बाई टी, क्योंकि वो वन अपॉन एस प्लस का जो लाप्लास इनवर्स होता है दैट इज e to the power minus at होता है. So now come to this reference of this or the response of this system. So the CT, when you will take this unit step response of first order system. So here one is the response, ideal response or steady state response of the system. So whenever this CT will start from 0, so at 0 the response will be 0 because this will come out to be as 1 minus 1. And as soon as t will increase, this will reach to 1 here, because क्या होगा कि जैसे ही a to the power minus t tending to infinity होगा तो a to the power minus infinity 0 हो जाएगा हमारा. तो ct will be 1. तो ये 1 हो गया आपका यहाँ से. और ये जो 1 है ये 1 नीचे की तरफ जाएगा. दैट इज ओनली फॉर e to the power minus t upon t. अगर 1 को हटा दें तो दैट इज नेगेटिव एक्सपोनेंशियल इन दैट केस. सो दिस इज द आउटपुट जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है. नाउ इफ यू विल पुट t इक्वल टू स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T, इन दैट केस दिस विल बिकम हेयर 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा वो t इक्वल टू कैपिटल T होते ही. And corresponding to this, the total response will be equal to 63%. So this t equal to capital T, this is known as time constant. So time constant is the time of the response where it starts from 0 and reaches at 63.7% or something of the total output. That is the time constant. So this one dct by dt अगर उसको आप ये करेंगे differentiate, so this will give you the slope of 1 by t which was there. अगर आप इसका slope लें तो ये unity है ऊपर का और नीचे time t है, तो this will come out to be 1 by t. Okay, so here this ts2, ts1, ts2 should be ts1, that is for settling time basically. What should be this ET? ET is the steady state error, and that is RT minus CT. So this RT minus CT, that will come out to be e to the power minus T upon T. And now if T is tending to 0, T is tending to infinity, steady state के लिए तो T infinity होगा. So this ESS will become 0 here. यहाँ पर ये 0 आ जाएगा आपका. Come to the second one, the response of the unit ramp input. तो unit ramp के लिए RS will become here 1 by S square. और जैसे ये 1 by S square होता है, then CS will be equal to 1 by S square into TS plus 1. So this will be 1 upon S square minus TYS plus T square upon TS plus 1. ये जो है हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे A upon S plus B upon S square plus C upon TS plus 1. And accordingly we have to calculate the value of A, B and C. So ये जो वैल्यू है वो A, B, C की वैल्यू आ जाएंगी. And this C is going to be CS will be equal to 1 upon S square minus T upon S plus T square upon TS plus 1. तो जो T square upon TS plus 1 है वहां पर हम फिर से वही काम करेंगे जो हमने पीछे किया है कि we will take T as common and ऊपर से T एक कैंसिल हो जाएगा and this will be T upon S into S plus 1 upon T. So this CT will become here T minus capital T will be common 1 minus e to the power minus T upon T, and ET will be equal to RT minus CT, which is this one, capital T into 1 minus e to the power minus T upon T. तो यहाँ पर जो error आएगी वो capital T होगी, because this steady state error is coming out to be capital T, which is not desirable. Therefore, we don't go for the standard test signal for and testing of any system using the ramp signal.
हम इसको यूज नहीं करते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो इसका ये रेस्पॉन्स है, सी टी इज द लोअर वन, दैट इज 1 माइनस कैपिटल टी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी, और आर टी इक्वल टू टी वो आपका ये है इनपुट सिग्नल है, एंड टोटल एरर, स्टेडी स्टेट एरर इज कमिंग आउट टू बी कैपिटल टी। सो दिस सी डॉट टी अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें डी सी टी बाई डी टी, दैट will be equal to 1 minus e to the power minus t upon t. That's why this error will always be there. Error कम नहीं होता है कभी भी इसमें. Okay, so this is the first unit step as well as unit ramp. If you want to calculate, तो impulse input में क्या होगा, CS क्या होगा, RS 1 हो जाएगा यहाँ पर, and CS will be equal to 1 upon TS plus 1. तो इसका जो रेस्पॉन्स होगा दैट विल बी एस, टी को कॉमन ले लीजिए, और दिस विल बिकम एस प्लस 1 बाई टी. सो दिस विल बी सी टी विल बी 1 बाई टी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी. तो जो कैपिटल टी है वो रहेगा यहाँ पर, और e to the power minus t upon t, and if capital T is equal to 1 then only this response will be like this. जो आपका e to the power minus t upon t है उसका रेस्पॉन्स आपका ऐसा होगा जैसे 1 से नीचे की तरफ आ रहा है. अदरवाइज अगर कैपिटल टी एज इट इज रहता है तो दिस विल बी 1 बाई टी, 1 की जगह 1 बाई टी हो जाएगा यहाँ पर, एंड दिस विल गो टू 0 आफ्टर दैट फॉर दिस impulse response in that case. Okay, so here this one is the system response for this. So now what you have to do, you have to keep this जो आपका वहाँ पर इनपुट है, वोल्टेज है, उसको कोई वोल्टेज आप रखिए उसमें, और वोल्टेज रखने के बाद कोई भी वोल्टेज आप, अगर डीसी सर्वो मोटर है तो जनरली वहाँ पर 12 वोल्ट लेते हैं, ठीक है. तो 12 वोल्ट सप्लाई लीजिए एंड कैलकुलेट दिस विद द हेल्प ऑफ योर मैटलैब. अभी तक कुछ किया है किसी ने उसमें? हेलो है? तो मैटलैब में करोगे? नहीं तो मैटलैब क्यों, मैटलैब तो होना चाहिए ना सबके पास. जब आप आओगे तो इंस्टॉल कर लो उसमें, उसमें चले जाना, हेल्प में चले जाना कि हाउ टू इवेलुएट स्टेप रेस्पॉन्स ना, तो वो अपने आप बता देता है, पूरा एग्जांपल के साथ बता देता है वो सारी चीजें, ठीक है. तो करते रहो, करके देखो, इसको करके देखो दोनों चीजों को, ठीक. ओके, सो आई विल टेक अटेंडेंस. सर एक और डाउट था. बोलो. सर उसमें हमें सिमुलिंक भी इंस्टॉल करके रखना है ना? सिमुलिंक क्यों करना है? सिमुलिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें. अच्छा नहीं, मुझे लगा, मैं एक्चुअली एक दूसरे सेक्शन का फ्रेंड कर रहा था कि आई थिंक सिमुलिंक भी करना है इंस्टॉल. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिमुलिंक की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें. ये डायरेक्ट मैटलैब में वैसे हो जाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके वहीं से हो जाता है. अब ये जो है मैं सेक्शन 1 ले रहा हूँ, सेक्शन 1 का ग्रुप 2 एक, ये दिस वन 28. ओके, इसमें 4040 2022 बैच का है. 4040 एज है, 4047 4057 मयंक बंसल, 4060 नहीं है, 4064 4070 प्रेजेंट सर. 4072 प्रेजेंट सर. गरिमा सिंह है ना? यस सर. बेटा आपका आ गया इधर
आपका सर नाम है। लास्ट की 2 लैब क्लासेस का भी था। अच्छा, और कोई है आपका यहाँ बैक वाला? सर नवनीत, यस सर। तुम लास्ट टाइम थे? सर नो सर, क्लास का लिंक ही नहीं मिला था तो ज्वाइन क्यों नहीं नहीं मिला लिंक? मैंने तो सीआर को पहले भेज दिया था। ठीक है। सर मेरे को, सर मैं तब ऐड नहीं था ग्रुप में। अच्छा, अभी कोई बच्चा है जो बैक ईयर का है? और कोई? मयंक, अरुण, केशव, हर्ष, कोई है? ओके, सो आई विल गो टू द नेक्स्ट सेकंड ग्रुप। सर लास्ट की 2 लैब क्लासेस का भी ऐड कर देना। हाँ बेटा, लगा दिया हमने। ठीक है, सर ठीक है। मेरी भी सर प्लीज लगा देना, वो ओके, ग्रुप ठीक में है। ऐड नहीं था मैं उस टाइम। ओके, 4030 अंजलि नहीं है? प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। ओके, 4035 प्रेजेंट सर। 36 प्रेजेंट सर। 37 38 39। प्रेजेंट सर। ओके, प्रेजेंट सर 39। ठीक है। 4040 प्रेजेंट सर। 41 प्रेजेंट सर। 42 42 43 प्रेजेंट सर। 44 प्रेजेंट सर। 46 प्रेजेंट सर। 48 49 प्रेजेंट सर। 50 51 प्रेजेंट सर। 52 53 यस सर। 55 प्रेजेंट सर। 56 प्रेजेंट सर। 57 59 61 62 प्रेजेंट सर। 63 65 प्रेजेंट सर। 66 प्रेजेंट सर। 68 प्रेजेंट सर। 70 72 Present, sir. 73 Present, sir. 74 74 okay, anybody else? सर मेरी 21 तारीख की एब्सेंट लगा रखी है 4049। 4049 नहीं लगाए आए होगे, बोला नहीं होगा। नहीं सर, मैं उस दिन में हर क्लास अटेंड करी है सर कंट्रोल की। नहीं, तुम नहीं आए होगे तभी तो नहीं लगा है इसमें। ठीक है, यहाँ आओगे तो लगेगी अटेंडेंस। और कोई एनीबडी एल्स? आज के लिए बोलो, आप जो भी बोलना है। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।